ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। 25 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਾ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਜੈਨਗਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਜੈਨਗਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨਸਰ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਭਗਵਾਨਸਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਪਕੜੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਪਕੜੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਬੱਸ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਗਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਔਰ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30% ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਟ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 30 ਰੁਪਈਏ ਘੱਟ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਆਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੰਗਾਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂੰਗਾ ਵਿਜੈਨਗਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸੁਖਾੜੀਆ ਸਰਕਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਖਾੜੀਆ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਜੈਨਗਰ ਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਨਾ ਕੁ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨਸਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਭਗਵਾਨਸਰ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਜੈਨਗਰ ਦਾ ਗੱਡੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਖਾੜੀਆ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਔਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਭਾਈ ਆਓ, ਵਿਜੈਨਗਰ ਵਿਜੈਨਗਰ ਵਿਜੈਨਗਰ। ਉਹ ਬੱਸ ਵੀ ਵਿਜੈਨਗਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਜੈਨਗਰ ਤੀਕਰ ਚੱਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਂ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਿਜੈਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਸ
हाँ, गंगानगर तो चल के विजयनगर पहुंच गई। विजयनगर अड्डे ते उतर गई, सारियां सवारियां उतर गईयां, मैं भी उतर गया। पर उस कंडक्टर ने मेरे तो टिकट नहीं मंगी। वैसे परमात्मा की पता नहीं की किरपा हुई कि वो कंडक्टर ने मेरे तो टिकट मंगी ही नहीं। पता नहीं उसनूं परमात्मा ने दस दिता सी कि इस गुरमुख प्यारे कोल पैसे नहीं है, तू टिकट नहीं मंगनी। और मैं उतरिया, उतर के विजयनगर चला गया। और मैं वाहिगुरू का लख लख शुक्र किया, सच्चे पातशाह तू बड़ी किरपा की है, मेरी लाज रखी है। तू अपने प्यारिਆਂ ਦੀ लाज इस तरह ही रखदा। मैनू बड़ा प्यार आया परमात्मा ते और मैं गदगद हो गया। और अपने मेरे मेरे अखां दे विचों गुरु दे प्यार दा एक जल छलक आया, और जो अखां तो बाहर निकल के मेरे मुख ते, मेरे दाढ़ी ते, मेरे शरीर ते समा गया। तो साध संगत जी, मैनू बड़ी खुशी हुई कि परमपिता परमात्मा अपने प्यारिਆਂ ਦੇ इस तरह भी कारज कर दिंदा है, करता है। वो अपने प्यारिਆਂ ਦੀ हमेशा लाज रखता है। पर शायद लोड़ है गुरमुख प्यारे नूं परमात्मा दे उत्ते भरोसा करन दी, दृढ़ निश्चा करन दी, परमात्मा नाल प्यार करन दी, परमात्मा नूं अपने आप नूं समर्पित करन दी। जो रूहां इस तरह नाल परमात्मा नूं समर्पित करदियां, परमात्मा उन्हां दी हर समय रक्षा करता है, उन्हां दी लाज रखता है। साध संगत जी, इस तरह ही एक होर अजीब घटना मैं तुहानूं सुणाउण लग्या, बड़ी सच्ची है, बिल्कुल सही है। बठिंडे तो चल के मैं गंगानगर पहुँचया, और गंगानगर पहुँचया तो मैं देखिया कि मेरे को किराया, क्योंकि मेरे को किराया कोई साधन नहीं सी। मैं घर छड्ड चुक्या सा, मैं परिवार छड्ड चुक्या सा, मैं कारोबार छड्ड चुक्या सा। मैं सिर्फ परमपिता परमात्मा की शरण दे विच, गुरु ग्रंथ साहब की शरण दे विच बैठ के गुरबाणी का विवेचन करता सी। और गुरबाणी जो मैनू रस्ते दसदी सी, मैं उस रस्ते ते, सच दे रस्ते ते चल रहा सी। कूड़ मैं बिल्कुल छड्ड रखिया सी, लालच मैं बिल्कुल छड्ड रखिया सी, लोभ मैं बिल्कुल छड्ड रखिया सी। जो परमपिता परमात्मा मैनू कोई 10 रुपये भेजदा सी, मैं उस ते ही गुजारा कर लेंदा सी। साध संगत जी, जब मैं गंगानगर पहुँचा तो मेरे को सामने गाड़ी दिखी, और गाड़ी के पास मैं आया तो सोचा कि जब दे देखी तो पैसे तो है नहीं, कम हैं। पैसे कुछ थे मेरे पास, मेरे को वो ज़रूरत थी। और तो मैंने सोचा क्यों ना टीटी को कह के और सफ़र कर लें, और टीटी अगर कहेगा तो गाड़ी में चढ़ जाएंगे, ले जाएगा तो चले जाएंगे। मैं टीटी के पास गया, और साहब मैं जैसर उतरना है, अगर आप मेरे को ले चलो तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। उसने मेरे को इशारा किया कि इस डब्बे में बैठ जाओ। मैं उस डब्बे में बैठ गया। जब गाड़ी चली तो उसी डब्बे में वो टीटी बैठा हुआ था, और गाड़ी चली तो गाड़ी चलने के कुछ देर बाद वो टीटी आया और मेरे को टिकट मांगे। मैंने कहा सर, मैंने आपको कहा था भी मैं बैठने जाना है, तो फिर ऐसा करो, टिकट नहीं है तो जुर्माना लगेगा और टिकट के पैसे लगेंगे। मैंने कहा सर, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने आपको कहा था भी मैं साहब आप मेरे को ले चलो तो आपकी मेहरबानी है, मैं बैठता, नहीं तो नहीं बैठता। आप नो कर देते तो मैं मत बैठता, आपने कहा था इसलिए बैठा हूँ। बोला नहीं, जुर्माना तो लगेगा ही। ज़बरदस्ती उसने कहा कि, मैंने कहा सर आप छोड़ो, जुर्माना मेरे पास है नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं गुरमुख प्यारा हूँ, परमात्मा की रूह हूँ, मेरे पास पैसों की कमी है। बोला नहीं। मैं आखिर मेरे पास 300 रुपया था, उसमें मैंने 300 में से उसको 230 रुपये या कितना जुर्माना लिया था, और बाकी टिकट के पैसे लिए थे, मैंने उसको दे दिए। मजबूरी थी, टिकट कटा ली, टिकट काट दी। टिकट काट दी, मैं आराम से बैठ गया और सोचने लगा कि सच्चे पातशाह ये मेरे साथ क्या हुआ। मैंने तो टीटी को पूछ कर बैठा था, अब उसी टीटी ने मेरे को जुर्माना लगा दिया। बड़ी अजब बात है। मैं हैरान हो गया, सच्चे पातशाह आप अपने प्यारों के साथ ऐसी करते हो क्या? अपने भक्तों की कभी लाज नहीं रखते क्या? ऐसे सोच ही रहा था तो आधे घंटे बाद वो टीटी फिर एक आदमी के साथ मेरे उसी डिब्बे में, मेरे कैबिन के
बीच में आ गया और कैबिन में एक आदमी को बिठा के कहने लगा कि आपने बीकानेर जाना और बीकानेर का जुर्माना और किराया भर दो। उसने बेचारे ने जैसे भी हुआ उसने दे दिया तो कंडक्टर के पास कुछ पैसे खुले नहीं थे उसको वापस देने के लिए, और मेरे को कहने लगा कि बाबा जी आपके पास 100 रुपया है। मैंने कहा सर मेरे पास तो वही पैसे थे, वो जो 10-20 रुपये आपने वापस दिए हैं वही है मेरे पास, तो और तो है नहीं। मैं तो संत आदमी हूँ, परम गुरु का प्यारा हूँ और परमात्मा की रजा में रहने वाला हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं साहब। बोला अच्छा, तो चलो उसने जैसे भी उसको कम बढ़ती करके पैसे उसके सलटा दिए और वो मेरे पास ही बैठ गया, आके मेरे साथ में बैठ गया, खब्बे हाथ में बैठा। वो मेरे को पूछ रहा सर जी कहाँ, जैसर जाना है आपने? मैंने सर जी हाँ जैसर जाना है। सर जी बोला कि आप क्या काम करते हो? मैंने कहा सर जी मैं तो गुरु का प्यारा हूँ, परमात्मा की शरण में हूँ, परमात्मा की भक्ति करता हूँ। कारोबार मैंने छोड़ा हुआ है, घर बार मैंने छोड़ा हुआ है, अपना शरीर भी मैंने छोड़ा हुआ है। कोई हौमे नहीं है, कोई मैं नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। जितने परमात्मा मेरे को पैसे देता है मैं उससे काम चला लेता हूँ अपने जीवन का। अच्छा, पता नहीं परमात्मा के बोला कि आपके पास 100 रुपया। मैंने कहा सर 100 रुपया नहीं है, वही 10-20 रुपये है मेरे पास तो। बोला अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा करो, उसने मेरे को क्या है कि 300 रुपया और ऊपर और 30-40 रुपये मेरे को वापस पढ़ा दिए। लो बाबा जी मैं गलती कर बैठा था और मेरे को क्षमा करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप शराब दे दो मेरे को शराब मत देना। मैं आपको नजायज़ ही कि आपने पूछा था और मैं नजायज़ ही आपको जुर्माना लगा दिया। पता नहीं मेरे मन में क्या आई। मैं सोच रहा हूँ कि परमात्मा ने उसके मन में क्या विचार दिया कि वो मेरे पास फिर आके दूसरी बार मेरे को पैसे वापस करके मेरा सत्कार करके मेरे से फिर काफ़ी देर आधा घंटा वहीं बैठा रहा, बातें करता रहा। बाबा जी क्या होती है बात, परमात्मा की बात शुरू हो गई और परमात्मा की बात शुरू हुई तो बहुत गहराई की बात चली गई। तब वो जाने लगा, कहने लगा बाबा जी मैं यहीं इस इलाके का हूँ, टीटी चौधरी जाति है मेरी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपको जो मैंने कष्ट दिया, मुझे माफ़ करना, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे श्राप दे दो। नहीं, परमात्मा की मर्ज़ी है भैया बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा जैसर मेरे को वो उतार के गए, बाबा जी आपने जैसर जाना है, जैसर आ गया उतर जाओ। मैं उतर गया, नमस्कार की, उसने भी नमस्कार की, धन्यवाद सर जी। और मैं सोच रहा था कि परमात्मा ने कैसा खेल खेला है, उस टीटी के मन में क्या विचार दिया है, क्या परमात्मा ने उसको समझाया है कि वो आकर के मेरे को पैसे भी वापस दे गया और मेरे को क्षमा भी मांगी। तो मैं समझता था कि ये परमात्मा बहुत बलवान है, अपने प्यारों की लाज वो रखता है। जो भी कार्य कभी भी कहीं भी हो परमात्मा उसकी रक्षा करता है, परमात्मा उसका सम्मान करता है। परमात्मा गुरु प्यारे का जो परमात्मा की भक्ति करता है उसका हमेशा ही वो ध्यान रखता है। वो ऐसी मेरी आज भी ये मत है कि परमात्मा की भक्ति करने वाले का परमात्मा हर समय ध्यान रखता है, परमात्मा उसकी रक्षा करता है, परमात्मा उसका हर कार्य संवारता है। कोई ज़रूरत नहीं है धन की, कोई ज़रूरत नहीं है जोर की, कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ परमात्मा आके खड़ा हो जाता है और अपने भक्तों की वो कार्य, अपने भक्तों की वो लाज, अपने भक्तों का वो प्यार हमेशा कायम रखता है। कभी वो अपना विश्वास जो है, अपने भक्त का विश्वास जो है वो टूटने नहीं देता। तो साध संगत जी ये बिल्कुल सच्ची कथा है, मैं जो मेरे साथ बीती थी आपको सुना रहा हूँ। पर मैं इसको सुनाने का मकसद यही है कि भाई जो आदमी इस युग में संसार में परमात्मा की भक्ति करते हैं वो दृढ़ निश्चय करके, परमात्मा पर भरोसा करके, परमात्मा को मान करके परमात्मा से प्यार करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे और जो आचरण परमात्मा की कृपा से गुरु ग्रंथ साहिब जी बताते हैं, हमारे जीवन में चाल चलन जो बताते हैं उसको अपनाएंगे तो अवश्य ही परमात्मा उसको दर्शन देगा, अवश्य ही परमात्मा उसके कार्य भी संवारेगा, अवश्य ही परमात्मा उसकी लाज भी रखेगा, अवश्य ही परमात्मा उसको प्यार भी करेगा। तो साध संगत जी ऐसी बात आपको बताता हुआ मैं क्षमा चाहता हूँ। परमात्मा है, सदा है,
हर जगह है, कण कण में है, हर पेड़ पौधे में है, हर पशु पक्षी में है, हर कीट पतंगे में है, हर जड़ी बूटी में है, यहाँ तक कि वन के तृण में, पर्वत में भी परमपिता परमात्मा विराजमान है। तो साध संगत जी, जब उसकी आप शरण करके परमात्मा से प्यार करोगे, परमात्मा को दृढ़ निश्चय से मान लोगे, तो परमात्मा आपको दर्श दिदारे भी बख्शता है। तो साध संगत जी, इतनी बात करता हुआ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट भी करना और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और कथा को सेव भी करना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरमुखो, वाहिगुरु जोत चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸੇਵ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ।